Jai Bharat, dear all Advitiyans. So in our last lecture, we discussed about the cell wall, its structure and many related structure with the cell wall. Okay, now we are proceed for the next topic, that is known as the cytoplasm, right? Cytoplasma is basically a cytoplasmic matrix or colloidal, crystallo-colloidal substance which are present inside the plasma membrane. So basically in this diagram, see there are two membrane which you need to focus on, that is plasma membrane and the other one is nuclear membrane. So cytoplasma is present between this nuclear to the plasma membrane. From nuclear membrane to the plasma membrane, whatever the entire area is there is considered as a cytoplasm, right? Okay, so first of all, it was a scientist named Kolliker who said that the cytoplasma is crystallo-colloidal substance. What does it mean by crystallo-colloidal substance? See, crystallo part forms many granules, for example granules of starch, granules of glycogen, for example cytoskeleton structure like tubules, right? Tubules, microtubules and microfilaments. Okay, so because of that it is a crystalline, and the colloidal stand for basically 70 to 80% of cytoplasma is made up of what? Water, in which there is an amino acid, there is a sugar, right? There is a nucleotide, and together that form a true solution, right? Other than that, for example, fat and protein, that form a colloidal part. So basically Kolliker say that cytoplasma is crystallo-colloidal system. Okay, the term cytoplasm was given by Strasburger. Strasburger also considered that the cytoplasmic part and the nucleoplasmic part together it is known as a protoplasmic part, right? That was also said by the Strasburger scientist. Liquid matrix without organelle, for example this is the cytoplasmic part, right? And I draw the entire organelles, for example SER, RER, Golgi body, mitochondria, lysosome, right? And many we can say that the cell inclusions, centriole. Okay, you just need to imagine in a way that, for example, these organelles are not there, right? Okay, so liquid matrix without organelles is called hyaloplasm. Hyalo means what? It is a glass-like, right? Or it is also known as cytosol, right? Cytosol means they are granular structure, and it is also known as cytomatrix. So in cytoplasmic region, for example, if we think that without any kind of organelles or cell inclusions, then whatever the colloidal substance are there, it is known as a cytomatrix or cytosol or hyaloplasm. Okay, and what about the organelle structure? Organelle structure are a compound or a complex structure which is known as trophoplasm. What it is called? Trophoplasm. So trophoplasm means what? It is a part of cytoplasma that contains what? Organelles and non-living inclusions. So these organelles and non-living inclusions, they are considered as a trophoplasm, and the remaining part is known as cytomatrix, cytoplasm or hyaloplasm. Okay. Now, if we talk about the cytoplasm, cytoplasm is amorphous, it is a translucent, right? And homogeneous means it is equally and samely distributed all around in this area, right? Between the nuclear membrane and the plasma membrane. It lies between the plasma membrane and nuclear membrane. तो nuclear membrane और plasma membrane के बीच का जो भी part है वो सब क्या है? Cytoplasm. दो तीन चीज़ें यहाँ पे important है, again वो रिवाइज कर लेते हैं. साइटोप्लाज्मा कहाँ पे होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में. सेकंड थिंग, साइटोप्लाज्मा हैज साइटोमेट्रिक्स, हाइलोप्लाज्म, राइट, और साइटोसॉल. दिस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज विदाउट ऑर्गेनल्स, राइट. और ऑर्गेनल्स वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्मा, दैट इज साइटोप्लाज्मा का, दैट इज नोन एज अ ट्रोफोप्लाज्म, राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो it is differentiated in two part. तो cytoplasm जो है it is differentiated into two part. यहाँ पे suppose मैं लिख दूँ this is the cytoplasm, ठीक है. तो ये cytoplasm की हम बात करें, this cytoplasm is divided or differentiated into two part. और वो दो पार्ट कौन सा है? एक जो है that is cytomatrix
और साइटोमेट्रिक्स जो है वो कैसा होगा, दैट इज विदाउट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट जो क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोप्लास्ट। साइटोमेट्रिक्स जो क्या है, साइटोसॉल, साइटोमेट्रिक, साइटोप्लाज्मा, ये सब एक ही हुआ है, हाइलोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है दैट इंक्लूड्स टू थिंग, दैट इंक्लूड्स टू थिंग, वन इज ऑर्गेनल्स, one is organelles and the other one is what, inclusions. The other one is small membranous structure which is known as a cell inclusions, or together this known as, इसको हम क्या बोलेंगे, trophoplast. What it is called, sorry, tropoplasm. What it is called, tropoplasm. और साइटोमेट्रिक्स जो है वो साइटोमेट्रिक्स जो है उसकी अगर हम बात करें तो साइटोमेट्रिक्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसॉल, या फिर क्या बोल सकते हैं, हाइलोप्लाज्म, ठीक है, या फिर साइटोमेट्रिक्स। ओके, सो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, वन इज साइटोमेट्रिक्स एंड one is cytometrics and cytoplasmic structure. That cytoplasmic structure include what, organelles and cell inclusions. तो cytoplasmic structure में हमने क्या include किया, organelles and cell inclusions, and together they are known as a tropoplasm. Okay, cytometrics is differentiated into outer ectoplasm and inner endoplasm. अब ये cytometrics की अगर हम बात करें, देखिए ये जो है ना, ये पूरा सेल मैंने बनाया है, ठीक है। अब ये सेल में आप इसको काउंट करो, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें ऑर्गेनल्स होंगे, लेकिन अभी हम ऑर्गेनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, अबाउट साइटोमेट्रिक्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइटोसॉल। हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइलोप्लाज्म, ऑल आर द सेम थिंग, साइटोमेट्रिक्स, हाइलोप्लाज्म, साइटोसॉल। अब उसकी अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम बात करें तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए बाहर का जो पार्ट है, राइट, टूवर्ड्स द पेरिफेरी, राइट, दैट इज नोन एज एक्टोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। दिस पार्ट इज डेंसर, ये पार्ट जो कैसा है, इट इज अ डेंसर पार्ट। थर्ड, दिस पार्ट इज नॉन ग्रेन्युलर, ये पार्ट जो कैसा है, इट इज अ नॉन ग्रेन्युलर। फोर्थ वन, this part is known as cortex, and the last one, this part is denoted as gel part. उसको हम क्या बोलेंगे, gel part। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, this cytometrics is divided into two part। उसमें दो पार्ट में बाहर का जो पार्ट है that is known as ectoplasm, this one is the denser cytoplasm, this one is the non-granular part of cytoplasm, it is also known as cortex, and this part is denoted as a gel part। वो साइटोप्लाज्म का कौन सा पार्ट है, जेल। चार पांच वर्ड जो याद रखने हैं, एक एक्टो, दूसरा डेंसर, तीसरा नॉन ग्रैन्युलर, चौथा कॉर्टेक्स, और उसको हम क्या बोलेंगे, जेल, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में जो इनर पार्ट है, दैट इनर पार्ट is known as एंडोप्लाज्म। यहां पे एक्टो था, ये एंडो, ठीक है। यहां पे कैसा था, डेंसर, यहां पे कैसा होगा, लेस डेंस पार्ट, ठीक है। ये कैसा था, नॉन ग्रेन्युलर, ये कैसा है, ग्रेन्युलर पार्ट, राइट। इसको हमने क्या बोला था, कॉर्टेक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूलर रीजियन, और इसको हमने किससे डिनोट किया था, जेल। दिस पार्ट इज नोन एज सॉल, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉल। तो बाहर का पार्ट दैट इज एक्टो, डेंसर, नॉन ग्रेन्युलर, कॉर्टेक्स, जेल पार्ट। अंदर का पार्ट एंडो, लेस डेंसर, ग्लैन्युलर, मेड्यूला, और उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है उसमें दो पार्ट है, जेल पार्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड सॉल पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, इसके अलावा इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ही क्या है, ऑर्गेनल्स है, इसके अंदर ही क्या है, सेल इंक्लूजन जो है वो है, ठीक है। ओके, सो साइटोमेट्रिक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और कॉर्टेक्स, एक्टोप्लाज्म इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्टेक्स, इज डेंसर एंड नॉन ग्रेन्युलर। कैसा है, डेंसर एंड नॉन ग्रेन्युलर, एंड इट रिप्रेजेंट्स एज अ जेल पार्ट, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख दिया है,
Okay. Endoplasm or medulla is less denser and granular, forms the bulk and it represents as sol part. तो अंदर का जो पार्ट है दैट इज सॉल, बाहर का जो पार्ट है दैट इज जेल. ठीक है. तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो इट इज डिफरेंशिएटेड इन टू पार्ट, आउटर इज जेल, इनर इज सॉल. आउटर इज एक्टो, इनर इज एंडो. आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज medulla. Outer is denser, inner is less denser. Outer is gel, inner is soft. चलिए नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, this part that is cytoplasmic matrix is differentiated into two parts. There is gel and sol. This gel and sol and gel is interconvertible and that is depending upon the requirement of the cell. Gel sol form reversible and that is known as gel sol colloidal system. ओके अब ये जेल सेल सिस्टम जो क्या है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एंडोसाइटोसिस, राइट. एंडोसाइटोसिस हैज टू पार्ट, phagocytosis if it is a endocytosis of solid particles, and if it is a water soluble then it is considered as a pinocytosis, but together it is known as endocytosis. So some substances enter into the cytoplasm from the ECF towards the cytoplasm. Okay, now supposing that this is the cell, right, and this one is the foreign food particle. Outer surface of the cytoplasma or outer region towards the peripheral region of the cytoplasma is considered as what? Gel, and the inner one is cell. Okay, now when any food particles come in contact with the cell, some part of the gel area or some part of the ectoplasma that will convert it, that gel part is converted into sol. ठीक है, थोड़ा पार्ट जो जेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल. जैसे ही वो सॉल में कन्वर्ट होगा, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्रेजुअली डेवलप व्हाट? दैट डेवलप इवेजिनेशन. इवेजिनेशन मींस ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन towards the outer side, that evagination, and gradually it cover what? Gradually it cover entire food particle. तो जब वो इवेजिनेशन डेवलप कर रहा है तो वो इवेजिनेशन को सपोर्ट कौन करेगा? ठीक है, पहले सॉल जो है वो हुआ, जेल जो हो किस में कन्वर्ट हुआ? सॉल में, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी जो हो क्या हुई? इंक्रीज हुई. ओके, अब सॉल में कन्वर्ट हुआ तो उस वहां पे क्या डेवलप हुआ? इवेजिनेशन. अब वो इवेजिनेशन वाला जो पार्ट है, दैट फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो है, दैट सपोर्टेड बाय द जेल. तो वहां पे वापस ये सॉल थोड़े टाइम तक हुआ, डेवलप हो गया, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेल में. और फिर ग्रेजुअली जो पूरा जो फूड पार्टिकल जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? अंदर. उसको फिर हम क्या बोल सकते हैं? फूड वैक्यूल. और जहां पे जेल सॉल में कन्वर्ट हो गया था, अगेन दैट जेल कन्वर्टेड इन, अगेन दैट सॉल कन्वर्टेड इनटू जेल. तो जैसे था वैसे स्ट्रक्चर बन गया और अंदर क्या बन गया? फूड वैक्यूल. ठीक है, ओके. तो ये जो एंटायर प्रोसेस है दैट शोज एंडोसाइटोसिस, और उसमें कौन सा? फैगोसाइटोसिस की हम बात करें तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ जेल सॉल सॉल जेल मैकेनिज्म. ठीक है, और ये दोनों तरीके से हो सकता है, एंडोसाइटोसिस में भी होगा, एक्सोसाइटोसिस में भी ये प्रोसीजर जो है वो होगा. चलिए, केमिकली इफ यू टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म, देन केमिकली इट इज a true solution. Chemically it is a true solution containing nucleotides, vitamins, then tRNA. tRNA means a transfer RNA. There are three kinds of RNA: messenger RNA, transfer RNA, and ribosomal RNA, right? And this together three are related with the synthesis of protein. It is also known as gene expression or central dogma process. Okay, it also has minerals, it has sugars, it has amino acid, proteins, fat, and maximum 75 to 80% 75 to 80% are made up of what? Water, right? So water is a main solvent, we can say that, right? Okay, so see, sugar, amino acid, mineral, tRNA, vitamin, nucleotide, they form what? True solution. While if you talk about the fat and protein, they form what? Colloidal substance, right? Okay, now matrix of cytoplasma also contains some non-protoplasmic materials. This matrix of the cytoplasma का जो matrix है, that is cytomatrix or cytoplasm, or we can say that the hyaloplasm, that contains some non-protoplasmic. Protoplasmic हम किसको count कर रहे थे? Those who are living, right? For example, cytoplasma, for example, nucleoplasma, for example, organelles, for example, nucleus, they are considered as a protoplasm. यहाँ पे non-protoplasmic, तो वो material कैसा है? That material is non-living material and
that material is known as ergastic substances. That ergastic substances could be a food reservoir, ठीक है. For example, अगर हम plant cell की बात करें, in plant cell we can say that the carbohydrate stored in form of starch, right? While in the same case in animal cell, the same carbohydrate is stored in form of glycogen, right? So in animal cell, the storage form of carbohydrate is what? Glycogen. While in case of plant cell, it is a starch. But that starch and glycogen remain suspended into the cytoplasma in form of granules, right? And that granules is nothing but the ergastic substances. So ergastic substances include what? It include food material. This is the one example. Okay, if we talk about the second example, this ergastic substance could be a excretory product. For example, if you talk about the gum, if we talk about the rubber, right? Gum and rubber, we can say that it is an excretory material which is secreted by the plant. For example, nicotine secreted by the tobacco, right? For example, caffeine. These are the substance which is not required for the plant itself, right? But although we use it, but basically it is what? It is an excretory product of plant, right? तो वो सारे जो है that is considered as a ergastic substances. तीसरी अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल जो है वो कोई एंजाइम जो डेवलप कर रहा है, कोई सेल जो है वो कोई हार्मोन जो डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो वो भी बाहर जो है वो एक्सोसाइटोसिस से आएंगे. दैट इज ऑल्सो एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस. ओके, तो एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस आर ऑफ थ्री कैटेगरीज, तीन उसकी कैटेगरी है. फर्स्ट वन जो है दैट इज रिजर्व मटेरियल, ठीक है, उसमें फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होगा. सेकेंडरी सब्सटेंसेस जो उसकी डिटेल जो हम बायोमोलिक्यूल में लेंगे, बट दैट इंक्लूड्स एंजाइम, नेक्टर एंड पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन. दे आर द सेकेंडरी सब्सटेंसेस, सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट. ओके, एंड द थर्ड वन इज excretory substances which is not required for the plant. For example, quinine, caffeine, theanine in tea, right? Nicotine, fats and oil in eucalyptus plant, then rasparin in the root of Rauwolfia serpentina. ये example जो याद रखना. For example, morphine, which is the alkaloid, right, drug. Okay, and glucoside in crucifera and gums in conifers. So these are basically a product which we excreted from the plant. तो ये सारे plant के अलग अलग product है, ठीक है, और वो उसके लिए क्या है, it is a excretory material, although वो हमारे लिए कोई ना कोई तरीके से useful है, ठीक है. चलिए, तो ये हम इसको बोलेंगे ergastic substances. अगर हम next part की बात करें तो next जो है that is function of cytoplasma. cytoplasma का function जो है वो क्या है, ठीक है. उसमें फर्स्ट जो है, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू सेल ऑर्गेनल्स फॉर देयर फंक्शनिंग, ठीक है. इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू सेल ऑर्गेनल्स फॉर देयर फंक्शन. अब उसका एक एग्जांपल जो लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक प्रोसेस की, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. अब प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा कहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो होगा रिबोसोम्स में, राइट. अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अगर हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो क्या है, फॉर रॉ मटेरियल अगर हम बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस के मोनोमर क्या है, एमिनो एसिड. इसके अलावा हमको क्या चाहिए होगा, एंजाइम्स, ठीक है. और ये एंजाइम्स जो उसके कोफैक्टर भी हो सकते हैं, जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट हो सकते हैं, ठीक है. चलिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होगा कहाँ पे, रिबोसोम्स में. और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो वो क्या है, इट्स मोनोमर. अगर मुझे स्टार्च बनाना है तो ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड, ठीक है. अगर मुझे प्रोटीन बनाना है दैट मीन्स एमिनो एसिड इज वेरी रिक्वायर्ड, वो रॉ मटेरियल है. तो ये रॉ मटेरियल जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, दैट प्रोवाइड अ साइटोप्लाज्म, ठीक है. और साइटोप्लाज्म में वो कहाँ से आएगा, बाहर से, ECF से, ठीक है. ओके, तो इट प्रोवाइड अ रॉ मटेरियल टू सेल ऑर्गेनल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन. ओके, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स. तो सेल ऑर्गेनल्स के बीच की अगर हम बात करें, वापस यही एग्जांपल लेते हैं. चलिए, रिबोसोम में क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये प्रोटीन अगर एक बार डेवलप हो गए, ठीक है, ये प्रोटीन जो हो गया हो गए, एक बार डेवलप हो गए, दैट प्रोटीन इटसेल्फ एक्ट एज अ एंजाइम, क्योंकि सारे एंजाइम जो किससे बने हैं, प्रोटीन. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हम कोई रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम की बात कर रहे हैं, जिसका यूज हम किस में करने वाले हैं, दो प्रोसेस में. और वो दो प्रोसेस जो कौन सी है, लिखना नहीं है, ये एकदम
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझ के लिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें क्रैब साइकिल की, उसके अलावा सपोज मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये दोनों जो प्रोसेस है, क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, these are the two phase of cellular respiration which takes place inside the mitochondria. But to perform this processes, it required numbers of series of enzyme, and that enzyme is made up of what? Protein. तो प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ था? रिबोसोम्स में। तो रिबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, वो प्रोटीन जो है दैट एक्ट एज एंजाइम एंड दैट एंजाइम यूज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल्स के बीच में भी क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, एंड दैट इज आल्सो ड्यू टू व्हाट? दैट इज आल्सो ड्यू टू साइटोप्लाज्म, राइट? चलिए, इट इज द साइट फॉर मेनी बायोसिंथेटिक रिएक्शन। अब वो बायोसिंथेटिक रिएक्शन में ये एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखनी है कि सेल में देखिए दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक जो है वो है एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा जो है दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। दो प्रोसेस है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। अगर मैं एनाबॉलिक प्रोसेस की बात करूं तो एनाबॉलिक प्रोसेस जो है अगर हम उसकी बात करें तो एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंपल कोई मॉलिक्यूल है दैट विल कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स वन, बराबर। सिंपल मॉलिक्यूल जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉम्प्लेक्स में। अगर मैं बात करूं प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड जो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोटीन में, ठीक है। तो सिंपल किस में कन्वर्ट हुआ? कॉम्प्लेक्स में, दैट इज नोन एज अ एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक जो है उसमें क्या होगा? कैटाबॉलिक में इससे उल्टा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल वन। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल में। अब उसका एग्जांपल जो है वो भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए एनाबॉलिक का तो एक एग्जांपल जो है वो यहीं ऊपर हमने लिखा है, ये एनाबॉलिक जो प्रोसेस है उसका एक एग्जांपल जो है वो हमने लिखा है, क्या है वो? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और सेम वे अगर मुझे कैटाबॉलिक का कोई एग्जांपल लेना हो तो वो प्रोसेस कौन सी है? फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमने एक लिया है, कौन सा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज द फर्स्ट फेज, आप पढ़ चुके हो 10th में। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ व्हाट? रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? इट इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का विच इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन दैट विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड विच इज मेड अप बाय 3 कार्बन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें ग्लूकोज विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल वन, पायरुविक एसिड में, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और ये जो कैसा है? एनाबॉलिक रिएक्शन। एंड दिस कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन टुगेदर दे आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। टुगेदर दे आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस, व्हेनेवर देयर इज अ टर्म सिंथेसिस, तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ही कन्वर्ट होगा, तो वो क्या है? एनाबॉलिक। और अगर हम किसी ब्रेकडाउन की बात करें तो वो क्या होगा? कैटाबॉलिक। तो जब एनाबॉलिक इंक्रीज होगा दैट शोज ग्रोथ, जब कैटाबॉलिक जो है उसका रेट एनाबॉलिक से ज्यादा हो जाएगा दैट शोज व्हाट? एजिंग, ठीक है, ओके। बट नॉर्मली दोनों बैलेंस होता है, दैट कंडीशन इज बेसिकली अ होमियोस्टेसिस, ओके। चलिए, सो इट इज द साइट फॉर व्हाट? many biosynthesis process, and it is also a site for enzyme for catabolic reaction, and the example is glycolysis, right? It helps in distribution of material in the cell. cytoplasma जो है उसमें स्ट्रीमिंग होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसको बोलते हैं, या फिर यू कैन से दैट इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और उससे क्या होगा? सेल जो है उसमें मटेरियल जो है वो क्या होंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें दैट इज साइक्लोसिस। अभी मैंने जो स्ट्रीमिंग की बात की, साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है? देयर इज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ अ वी कैन से दैट द साइटोप्लाज्मा विद इन द सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोसिस, ठीक है। चलिए, साइक्लोसिस इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट shows by eukaryotic cytoplasm, right? It was reported by MSc. MSc साइंटिस्ट का नाम है जिसने पहली बार ये रिपोर्ट किया किसमें? अब आल्गा सेल, और वो आल्गा सेल जो है वो कौन सा था? कारा। अब कारा में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इन कारा वन सेल हैज 10 सेंटीमीटर लेंथ। सेल जो उसकी लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेल।
ह्यूज सेल हुआ ये, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कारा जो है वो अलगा, उसमें एमिसी ने सबसे पहले ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो रिपोर्ट किया या फिर आइडेंटिफाइड किया इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, इज सीन इन लार्ज साइज सेल लाइक प्लांट सेल, प्रोटोजोअन्स लाइक अमीबा, उसमें जाइंट अमीबा एंड द पैरामीशियम। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो अब बैक्टीरिया में आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, वो किसमें है, लार्ज साइज सेल। तो वो कौन सा होगा, हायर प्लांट सेल, प्रोटोजोअन्स, ठीक है, सिंगल सेल्यूलर है ऑर्गेनिज्म लेकिन कैसे हैं, बड़े, एंड पैरामीशियम दैट इज आल्सो सिंगल सेल्यूलर। ओके, रेट ऑफ साइक्लोसिस, देखिए साइक्लोसिस जो उसका रेट किसके ऊपर अफेक्ट, उसका रेट जो किससे अफेक्टेड है, रेट ऑफ साइक्लोसिस इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स लाइक विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मा। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वेसल्स लिया और उसमें सपोज आप ले रहे हो हनी, ठीक है, और फिर अगर आप उसको रोटेट कर रहे हो, एक चीज़ ये होगी, दूसरा वेसल लो, उसमें क्या लिया है आपने, सिंपल वाटर, उसको रोटेट करो, ज़्यादा कौन रोटेट होगा, वाटर, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कैसी है, कम, राइट। तो विस्कोसिटी ऑफ साइटोप्लाज्मा एक वो फैक्टर हो गया। सेकंड इज टेम्परेचर एंड द थर्ड वन इज मेटाबॉलिक स्टेट। अगर वो सेल जो वो ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें स्ट्रीमिंग कैसा होगा, ज़्यादा, अगर वो कम एक्टिव है तो वो स्ट्रीमिंग की रिक्वायरमेंट कैसे रहेगी, कम। ओके, एंड द लास्ट वन इज मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन कौन सा है, एरोबिक है या फिर एनारोबिक है, ठीक है, वो भी। और दूसरी चीज़ देखिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है उसमें अगर हम बात करें तो सपोज हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो है वो ज़्यादातर क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट जो है उसको कहाँ पे रखेगा, टूवर्ड्स द पेरिफेरी। उससे बेनिफिट क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इजी हो जाएगा। सेम वे रेस्पिरेशन जो है वो अगर एरोबिक है तो ऑर्गेनल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो सब वो कहाँ पे रहेंगे, सरफेस से, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट। ओके, साइक्लोसिस आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के साइक्लोसिस है। चलिए इसमें देखिए कि यहाँ पे मैंने प्लांट सेल बनाया है एंड दैट प्लांट सेल हैज़ लार्ज वैक्यूल, और ये लार्ज वैक्यूल में सपोज ये एक डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर स्ट्रीमिंग हो रही है दैट इज नोन एज अ रोटेशनल स्ट्रीमिंग। उसको क्या बोलेंगे हम, रोटेशनल स्ट्रीमिंग। रोटेशनल स्ट्रीमिंग ने एक बड़े से वैक्यूल के आसपास कोई एक ही डायरेक्शन में, मतलब यूनि डायरेक्शनल है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। ऐसा हम एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं लेकिन डायरेक्शन एक ही होगी, राइट। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल स्ट्रीमिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एनिमल सेल बनाया है। एनिमल सेल में वैक्यूल ज़्यादा होते नहीं है, राइट, दे हैव स्मॉल वैक्यूल्स एंड दैट इज ऑल्सो इन डिस्पर्स फॉर्म। ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत सारे, इसमें भी ऑर्गेनल्स होंगे लेकिन सबसे लार्ज ऑर्गेनल्स इसमें किसमें कौन सा होगा, प्लांट सेल में वैक्यूल। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी है और स्मॉल वैक्यूल्स भी हैं और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी है, मतलब सेल इंक्लूजन्स। तो यहाँ पे सपोज ये एक ऑर्गेनल ये या फिर वैक्यूल के आसपास ये क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, स्ट्रीमिंग। दूसरे में वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो स्ट्रीमिंग है दैट इज मल्टी डायरेक्शनल। यहाँ पे देखिए या तो वो क्लॉकवाइज हो रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ यूनिडायरेक्शनल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल साइक्लोसिस। ये एग्जांपल जो है वो किसका है, रोटेशनल साइक्लोसिस। क्या बोलेंगे हम इसको, रोटेशनल साइक्लोसिस। और ये जो है सेकंड वाला वो कैसा है, सर्कुलेशनल, मतलब सर्कुलर फॉर्म में क्या हो रहा है, वो साइक्लोसिस हो रहा है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। चलिए तो दो जो है वो हम देखते हैं, एक रोटेशनल, रोटेशनल कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, ये वाला। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट इज ओनली इन अ वन डायरेक्शन, इज ओनली इन अ वन डायरेक्शन अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल। और उसके एग्जाम्पल कौन सा है, यंग सेल ऑफ हाइड्रिला, कारा एंड वेल्सनेरिया, राइट, तीनों जो है वो प्लांट है। चलिए, और अलगा है। सर्कुलेशनल और मल्टी डायरेक्शनल, ये जो है वो कौन सा है, सर्कुलेशनल और मल्टी डायरेक्शन। ओके, साइटोप्लाज्म मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस अराउंड डिफरेंट वैक्यूल्स इन द सेम सेल। एक ही सेल में डिफरेंट वैक्यूल या फिर डिफरेंट ऑर्गेनल्स के आसपास उसका स्ट्रीमिंग का डायरेक्शन कैसा है, अलग अलग, दैट इज व्हाई इट इज अ मल्टी डायरेक्शनल या फिर सर्कुलेशनल मूवमेंट। ओके, example of circulational or multidirectional cyclosis is staminal hair of Roya. Staminal hair is developed from the base of the filament, right, and that is the characteristic features of plant, right, and that process is nothing but the
circulational or multidirectional cyclosis. Okay, now the last point is that the protoplasma is made up of cytoplasma. Cytoplasma is present where it is between the nuclear membrane and the plasma membrane. So protoplasma is made up of cytoplasma and nucleoplasma, right? That information was given by what? Strasburger. That information was given by Strasburger, right? I hope you understand everything regarding the content of cytoplasma. आपको लेक्चर में मजा आया होगा. If yes, please you can subscribe our channel, that is Advait Achievers, and you can also download the app from the Play Store. मेरे साथ बहुत ही अच्छी फैकल्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में है. मेरे साथ फिजिक्स जो है उसमें हमारे पास है अंकित वर्मा सर एज वेल एज प्रीतम केसरी सर, एंड in chemistry we have Roy sir as well as Dr. Vinaydeep Punetha, and for JEE student we have मैथ्स टीचर इन ए ग्रुप, दैट इज देविदास कमलेकर और निशांत राजगौर. तो सारी टीम जो है बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रही है आप सब लोगों के अच्छे भविष्य के लिए. सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, लव यू ऑल. विद्यार्थी देवो भव. जय भारत.